بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے حابیل اور قابیل کے بارے میں کچھ معلومات لے کر آئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا، اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ دوسرا چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خد و خال کا مالک، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی و طاقتور تھا۔ دوستو، حابیل کے اچھے اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی بری عادتوں کی وجہ سے اس کے متعلق فکر مند رہتے اور اس کی اصلاح کی کوششیں بھی کرتے تھے۔ دوستو، قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل و قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ جب دونوں بھائی شادی کی عمر کو پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کی شادی کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرمائے گا، اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دے۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نظر قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 27 تا 30۔ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔
दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। इसी असना में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा जाने का हुक्म फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काबिल की जानिब से मुतफक्किर थे, चुनाचे हज के सफ़र पर जाने से पहले आप अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटे को बुलाकर नसीहत की कि बारगाह खुदावंदी से जो भी फैसला आए उसे दोनों भाई बखुशी कबूल करें और आपस में मिलजुल कर रहें। इस हिदायत और नसीहत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा रवाना हो गए। काबिल बाप की नसीहत की वजह से कुर्बानी देने पर आमादा हुआ था, चुनाचे दोनों भाइयों ने कुर्बानियाँ पेश की। हाबिल बकरियों वाले थे, चुनाचे उन्होंने एक निहायत उम्दा, खूबसूरत और फरबा बकरी राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबिल खेती बाड़ी करता था, लिहाजा उसने फजूल और रद्दी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी में दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हाबिल की कुर्बानी कबूल फरमा ली, मगर काबिल की कबूल नहीं हुई। इस ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की अलामत ये होती थी कि आसमान से एक शोला नीचे उतरता और वो कुर्बानी के लिए पेश की गई शय को जलाकर भस्म कर देता। इसका मतलब ये था कि अल्लाह ने कुर्बानी कबूल फरमा ली। ये देखकर काबिल गज़बनाक हो गया और हसद की आग में जलकर बोला, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाबिल ने कहा, भाईजान, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह ताला का कायदा है कि वो सिर्फ अपने मुत्तकी बंदों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ चलाएंगे तब भी मैं आपको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह ताला का खौफ है। अगर आप इस इंतहा तक पहुंच जाएंगे कि मुझे कत्ल ही कर देंगे तो आप अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का बोझ भी अपने सर उठाएंगे। एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करने वाला गोया मकतूल के तमाम गुनाहों का बोझ भी अपने सर उठा लेता है। इस तरह मेरे गुनाहों का वबाल भी आपके सर होगा और मेरे लिए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अलबत्ता इस जुर्म की वजह से आप जहन्नुमी हो जाएंगे। इन अल्फाज के बैतुसतूर इसकी ज़मीर की कशमकश का मुकम्मल नक्शा मौजूद है। एक तरफ अल्लाह का खौफ, नेकी का जज्बा, खून का रिश्ता, और दूसरी तरफ शैतानी तरगीब, हसद की आग और नफसानी ख्वाहिश की उकसाहट। और फिर बिलाखिर इस अंदरूनी कशमकश में उसका नफ्स जीत ही गया और उसने भाई को कत्ल कर डाला, जिससे वो नुकसान पाने वालों में से हो गया। बयानुल कुरान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 207। दोस्तों, काबिल ने हाबिल को कैसे कत्ल किया? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, मकतूल हाबिल काबिल से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे हया और शर्म माने रही कि अपने भाई की तरफ कत्ल के लिए हाथ बढ़ाए। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ इक़वाल तहरीर फरमाते हैं कि शायद काबिल के पास लोहे की राड हो जिससे हाबिल को मारा और कत्ल कर दिया, और एक कौल ये भी है कि काबिल ने पत्थर की चट्टान हाबिल के सर पर मारकर उसे हलाक किया, जबकि हाबिल जब सो रहा था तो काबिल ने भाई का सर कुचल डाला। एक कौल ये भी है कि काबिल ने हाबिल का गला घोंटा और इस तरह उसे काटा जैसे दरिंदे करते हैं, जिससे वो जाँ बहक हो गया। वल्लाहु आलम। क़ससुल अंबिया इब्ने कसीर सफ़ा नंबर 67। ज़मीन पर इंसान का पहला कत्ल। दोस्तों, कुरान करीम में मज़कूरा शादी का कोई तस्करा है और ना ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादों हाबिल और काबिल के नाम मौजूद हैं, बल्कि नामों के बजाय आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों कहकर जिक्र किया गया है। इस कुर्बानी का जिक्र फरमाकर अल्लाह ताला ने नाश की तदफीन के बारे में यूँ फरमाया है कि तर्जुमा, अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए। कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे की मानंद भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। सो वो पशेमा होने वालों में से हो गया। सूरह माइदा आयत नंबर 31। नाश दफन करने का तरीका कौवे ने सिखाया। दोस्तों, काबिल ने अपने भाई को कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब वो निहायत परेशान था कि इस नाश का क्या करे। ये ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था।
بعض मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है जब काबिल अपने भाई को कत्ल कर चुका तो उसकी नाश 1 साल तक अपनी पुश्त पर लादे फिरता रहा। अहले किताब से मनक़ूल है कि दमिश्क के शुमाल में एक पहाड़ जबल क़ासियून में वो गार मौजूद है जिसमें काबिल ने पत्थर मारकर हाबिल को कत्ल किया था। ये गार आज भी खूनी गार के नाम से पुकारा जाता है। इस बात की सेहत का इल्म तो अल्लाह ताला ही को है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने 2 कव्वों को भेजा था। इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान बिन इबे करीमा मुफस्सिर कुरान है और सादी के नाम से शोहरत रखते हैं। वो अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि वो कव्वे दोनों भाई थे। फिर दोनों लड़ने लगे हत्ता कि एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। फिर वो कत्ल के बाद ज़मीन की तरफ झुका और उसे खोदने लगा। फिर गड्ढे में कव्वे को डाला और उसे दफन करके छुपा दिया। जब काबिल ने ये सब देखा तो पुकार उठा, हाय अफसोस कि मैं इस कव्वे की तरह होने से भी आजिज़ हो गया कि अपने भाई की लाश छुपा लूँ। फिर काबिल ने कव्वे की पैरवी करते हुए भाई को दफन करके छुपा दिया। क़ससुल अंबिया इब्ने कसीर सफ़ा नंबर 68। हाबिल का गम और नए फर्जंद की विलादत। दोस्तों, अहले सिर लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद हाबिल के कत्ल का सख्त रंजो गम था क्योंकि वो उनका जानशीं था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी याद में 40 साल तक रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें हाबिल के बदले एक निहायत नेक और सआदतमंद फर्जंद अता फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उनका नाम शीस रखा जिसके माने हैं अल्लाह का अतिया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। कत्ले नाहक का पहला मौजिद। दोस्तों, हाबिल की नाश दफनाने के बाद काबिल को वालिद के गुस्से का खौफ था। चुनाचे शैतान के मशवरे पर वो यमन फरार हो गया जहां उसने सकूनत इख्तियार कर ली और वालिद के दीने हक को छोड़कर पहले आतिश परस्ती बाद अज़ा बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्ल गारत गर्दी, हसद व फसाद और आतिश परस्ती और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ही ने रखी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई इंसान जुल्म से कत्ल किया जाता है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले बेटे काबिल के नामे आमाल में भी इस कत्ल का गुनाह लिखा जाता है क्योंकि कत्ल नाहक का पहला मौजिद वही है। सही बुखारी हदीस नंबर 3335, तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2673, सनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2616। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ीद बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों में खून का फ़ैसला किया जाएगा। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1396, सही मुस्लिम हदीस नंबर 4381 और इब्ने माजा हदीस नंबर 2615। एक बेगुनाह का कत्ल। दोस्तों, एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। हाबिल और काबिल के इस किस्से में अल्लाह ताला आगे मज़ीद फरमाता है कि इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को बग़ैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों को ज़िंदा कर दिया। सूरह माइदा आयत नंबर 32। दोस्तों, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के यहाँ इंसानी खून की कितनी अहमियत और तकरीम है, और ये उसूल सिर्फ बनी इसराइल ही के लिए नहीं है बल्कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमेशा हमेशा के लिए है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काबिल को हाबिल के कत्ले नाहक की दुनियावी सज़ा फौरी तौर पर उस तरह दे दी गई कि उसकी पिंडली उसकी रान के साथ चिमट गई और जिस तरफ सूरज का रुख होता उसका चेहरा भी अस खुद उधर ही घूम जाता। अपने भाई के साथ हसद, सरकशी और गुनाह की वजह से उसे ये रुसवाई और अजाब मिला, जबकि आखिरत का अजाब सख्त और अपनी जगह कायम है। इब्ने कसीर सफ़ा नंबर 70। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आपके पास जल्द पहुंच सके।
ملتے ہیں اگلی شاندار سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔